وہ جے شنکر فرما رہے تھے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ آج کل آپ کی ہر بات پاکستان کے ذکر کے بغیر مکمل ہو جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مارکیٹ کا اصول ہے کہ دیوالیہ ہوتی کمپنی کے بارے میں کون بات کرتا ہے، اب اس میں شرم سے ڈوب مرے۔ یہ سچویشن جو ہے وہ اس وقت ڈیفرنٹ ہے، طوفان آنے والا ہے۔ راجیو چندر شیکھر صاحب کی ٹویٹ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین ملٹری ماڈرنائز کر رہی ہے، اور اگر آپ انڈیا کے اگینسٹ وار پہ جاؤ گے، if you go to war with India, someone else will raise your children. آپ کے جو بچے ہیں ان کی پرورش بعد میں کوئی اور ہی کرے گا because you will be neutralized. تو یہ ان کی جانب سے جو بیان ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات چیت کی گنجائش اس وقت دکھائی دیتی ہے؟ ہم نے اپنے تمام رستے جو بند کر رکھے ہیں، کیا وجہ ہوئی کہ پی ٹی آئی نے کشمیر کے لیے تمام آپ نے کہا کشمیر کا جو مسئلہ ہے ایک دیرینہ مسئلہ ہے ختم کرنے۔ آپ نے یہاں سر یہ ملیٹنٹ جو تھے ٹرین کر کے لشکر طیبہ یا مختلف اس کے نام کے اوپر آپ نے تنظیمیں بنائی، آپ نے وہاں پر بھیج دی؟ جی بالکل بھی نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بات چیت اس وقت ہو سکتی ہے۔ بات چیت اور مذاکرات ہی اس وقت گو کے واحد حل ہیں۔ کشمیری اس ٹائم پہ یہ نہیں چاہتا تھا پاکستان میں آنے کے لیے۔ جناح صاحب نے جب وہاں سے قبائلیوں کو بھیجا تو کشمیریوں نے ریجیکٹ کیا نا۔ 75 سال بعد ہم جس مقام پر پہنچے ہیں وہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو جو حالات ہیں ہمارے، جو 24 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کے حالات ہیں کہ اگر ہم ٹریڈ نہیں چالو کریں گے، اگر ہم کشمیر کے لیے اپنے سب رستے بند کر رکھیں گے تو ہماری کبھی بھی ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی۔ اس کا بدلہ ٹھیک انہوں نے 6 سالوں بعد لیا، 71 میں لے لیا، ملک توڑ کے بھی رکھ لیا، پھر 98 کے اندر آپ نے کیا کیا، کارگل کے اوپر کیا۔ آپ یہ کام تو کرتے رہے ہو اپنے تیار کر کے بندوں کو بھیجتے ہوئے۔ کشمیریوں نے ان کو واپس بھیج دیا۔ یہ تو پیچھے دیکھو نا، پیچھے لگائے ہوئے ہے، لہرانے کی بات نہیں ہے، ہمارے دل میں ہے۔ بھی بڑے ہیں، اپنی ضدیں انائیں چھوڑ کر اکٹھے بیٹھیں اور مسائل کا حل نکالیں۔ میرے بھائی، آج سے 35 سال پہلے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے کہا تھا کہ 50 سال کے لیے کشمیر کو ذرا فریز کر دیں۔ آپ سے اب یہ مسئلہ تو طے ہو نہیں رہا۔ آپ کشمیر کو بچانے لینے گئے تھے، آپ کا لاہور بھی جا رہا تھا، آپ کے کراچی کو بھی جا رہا تھا، آپ نے ڈیفینڈ کیا ان کو۔ دوستو، بھارت کے विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि दुनिया बेवकूफ़ नहीं है और ना ही पाकिस्तान की हरकतों को भूलने वाली है, इसलिए पाकिस्तान को अपनी हरकतों में सुधार कर एक अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश जो है करनी चाहिए। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार की ओर से दक्षिण एशिया, खासकर भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवाद और संघर्ष को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि आप गलत मंत्री के साथ सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आप यह पूछते हैं कि सब तक जारी रहेगा तो इसका जवाब पाकिस्तान के ही मंत्री दे सकते हैं कि पाकिस्तान कब तक आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा और कब तक जो है। इस बात को जो है जयशंकर पलटवार करते हुए कहा कि दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है, पाकिस्तान की करतूतों को भूलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया को आप ज़्यादा दिनों तक गुमराह नहीं कर सकते हैं। आतंकवाद फैलाने में शामिल देशों और संगठनों को दुनिया तेज़ी से जो है पहचान रही है। یہ سچویشن جو ہے وہ اس وقت ڈیفرنٹ ہے۔ یہ بیان کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، وہ جب حکومت میں تھے تو اس وقت اپوزیشن سے متعلق کہا کرتے تھے، پھر جب حکومت سے باہر گئے اس کے بعد بھی انہوں نے کئی بار کہا، لیکن 9 مئی کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہم نے دیکھی۔ تو یہ ان کی جانب سے جو بیان ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات چیت کی گنجائش اس وقت دکھائی دیتی ہے؟ جی بالکل بھی نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بات چیت اس وقت ہو سکتی ہے۔ بات چیت اور مذاکرات ہی اس وقت گو کے واحد حل ہیں۔ جہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں وہ ایک فکرہ ہے کہ 75 سال بعد ہم جس مقام پر پہنچے ہیں وہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو جو حالات ہیں ہمارے، جو 24 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کے حالات ہیں اور جو اصل مسائل ہیں ہمارے، وہ تو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے ہیں اپنی ضدیں انائیں چھوڑ کر
इकट्ठे बैठें और मसाइल का हल निकालें, इंतखाबात पर इकट्ठे हों ताकि ये बेयकीनी की कैफियत ख़त्म हो जाए। 90 दिन में होने हैं, 6 महीने में होने हैं, 1 साल में होने हैं, 2 साल में होने हैं, एक वाज़ेह तौर पे बात हो जाए कि यहाँ इस दिन इंतखाबात होने हैं, बात ख़त्म हो जाए। आबादी बम जो खाई जा रहा है, जो हमारी आबादी है बढ़ती जा रही है और वसाइल कम होते जा रहे हैं, उस पर मुआशी इस्लाहात पर, कर्जे, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत पर, मईशत पर और मिसाकी अवाम पर मुत्तहद होने की ज़रूरत है। 200 जो सफ़ेद हाथी हैं उन पर हमें मुत्तफिक होने की ज़रूरत है, एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। इस वक्त जितने मुआशी हालात बुरे हैं उससे ज़्यादा नफसियाती हालात बुरे हैं कौम के। 1965 जो है हम डिफेंड डे कह रहे होते हैं, वो डिफेंड डे हुआ क्यों है? क्यों हुआ? आपने यहाँ से ये मिलिटेंट जो थे ट्रेन करके लश्कर तैयबा या मुख्तलिफ उसके नाम के ऊपर आपने तंजीमें बनाई जो आज हमारे मुल्क के अंदर अटैक करें, दहशतगर्द बना रही है, हमारी ज़िया की दौर की पैदावार है ना, ये बात तो पता है। ठीक है, आपने वहाँ पर भेज दी, श्रीनगर पर कब्जा हो गया, उनको पता लग गया श्रीनगर पर कब्जा हो चुका हुआ है, यहाँ से पीछे आर्मी जाकर टेक ओवर करना था, उसने सारे महाज खोल दिए, सारे बॉर्डर पर फौजें चढ़ा दी। आप कश्मीर को बचाने लेने गए थे, आपका लाहौर भी जा रहा था, आपके कराची को भी जा रहा था, आपने डिफेंड किया, उनको पीछे किया, उन्होंने अपनी फोर्सेज पीछे भेज ली, उसका बदला ठीक उन्होंने 6 सालों बाद लिया, 71 में ले लिया, मुल्क तोड़ के भी रख लिया। फिर 98 के अंदर आपने क्या किया, कारगिल के ऊपर किया। आप ये काम तो करते रहे हो अपने तैयार करके बंदों को भेजते हुए, यही काम उसने सीख लिया, ठीक हो गया। अब वही ट्रेन करके बलोचिस्तान के हमारी बंदे खरीदता है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने जो हिस्ट्री बताई है, नो डाउट मैं मैं हिस्ट्री को अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं नजम सेठी साहब ने ड्रामे के ये उनका एक आपस की बात में आता था, उन्होंने पूरी रिवील की हुई है उनका प्रोग्राम है। लेकिन ये हमारी बुक्स में ऐसे बताया जाता है, हमारी बुक्स में तो यही हमेशा बताया जाता है कि जी रात के अंधेरे में चलाक दुश्मन ने अटैक किया और जो सा ये किया गया वो किया गया। मतलब ये है कि रात का अंधेरा हो या दिन का, फिर अटैक तो अटैक होता है अगर किया जाए या ना किया जाए। आपको नहीं लगता कि हमें हिस्ट्री उस तरीके से नहीं बताई जाती? सर हिस्ट्री के अंदर तो सारों नहीं खचे मारी हुई है इसमें, हिस्ट्री के ऊपर तो आप बात करेंगे तो फिर आप इस्लामिक तंजीम उठा लें तो इस्लाम की तारीख उठा के देख लें, आपको 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम आया यहाँ पर एक औरतों को बचाने के लिए, और जिसने उसको भेजा जहाज में यूसुफ, उसने सहाबी रसूलों को काबे के ऊपर भी टंगवाया था, जालिम बंदा था। हिस्ट्री के अंदर बता दी दुश्मन भारत है जो चांद पे उतर गया और हम अभी मुफ्ती पोपल ज़ई और मुफ्ती मुनीब के चांद के चक्रों से नहीं निकले। तो वो जयशंकर फरमा रहे थे कि उनसे पूछा गया कि आप आजकल आपकी हर बात पाकिस्तान के जिक्र के बगैर मुकम्मल हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये मार्केट का असूल है कि दिवालिया होती कंपनी के बारे में कौन बात करता है। अब इसमें शर्म से डूब मरे। ये जो हमारे सारे के सारे हैं, ये जो सारे हमें भाषण तकरीरें सुन सुन के हम पक गए हैं, वो कहते हैं कि जो दिवालिया हो गई हो रही हो कंपनी, उसके बारे में भला कौन बात करता है। नरेंद्र मोदी का आपको याद होगा अमेरिका में क्या कहा था उसने कि छोड़ो, वो अपने आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, हमने अब दुनिया से मुकाबला करना है। इससे पहले जयशंकर ने बिलावल भुट्टो के दौरे के बाद क्या कहा था कि इस पाकिस्तान की उतनी क्रेडिबिलिटी है जितना उसका ज़र मुबादला है। और फिर अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप सामने रख लें कि अफगानिस्तान की मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान से तसल्ली बख्श रही। रुपए के मुकाबले में अफगान करेंसी 29.3% मुस्तहकम रही, महंगाई 9.1% कम हुई। ये वो अफगानिस्तान है जो हमसे नीचे 2-3 मुल्क रह गए थे, अब वो भी ऊपर जा रहे हैं। हमें हमारे पहले जो हैं मैं सदके जाऊं लीगियों के पे और पीपल्स पार्टी वालों पे 16 महीने इक्तदार उन्होंने किया, इक्तदार में अपने सारे काम सीधे किए, अपने करप्शन केसों को सीधा किया और लंदन और दुबई जाके बैठ गए। और निगरान हमें इतला दे रहे हैं रोजाना, कोई कह रहा है क्या, हमें अंदाजा नहीं था कि हालात कितने खराब हैं। कोई कह रहा है कि डॉलर की वजह स्मगलिंग है। भाई इतलाएं सुन सुन के तंग एक तो हुकूमत में जयशंकर के पलटवार जवाब पर इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो गया है कि भारत के जो है विदेश मंत्री जयशंकर जो है इस पाकिस्तान को लेकर के क्या बोल रहे हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है और यहाँ तक कि जो है पाकिस्तान के लोग जो है चाहते हैं कि भारत के साथ व्यापार हो और उनके जो है पाकिस्तान के अंदर जो है गरीबी को जो है खाना जो है हर चीज़ सस्ता मिल सके और महंगाई जो है दूर हो सके। इस बात को लेकर के जो है पाकिस्तान की जो मंत्री हैं वो यूएई तक गए थे, यूएई से बोले थे कि भारत से बात करा दीजिए और
व्यापार के लिए, तो यूएई ने भी उन लोगों का साथ नहीं दिया और ना ही इसके बारे में कुछ कहा, क्योंकि जिस तरीके से देख सकते हैं अनंतनाग में किस तरीके से इन्होंने भारतीय जवानों को मारा। ये जो है ये जातीय और धर्म, मुस्लिम धर्म के नाम पर विवाद कराते हैं और आतंकी को पनाह देते हैं, और आतंक को ट्रेनिंग देने वाला देश जो है पाकिस्तान है।